So now you can please you can switch off your cameras now. So let's start the session. Good morning all. I would request every participant to kindly just turn off their mics and use chat box for any doubts in between the session. And I'm Ritika Khattar, and I've got this opportunity to moderate this training today. On behalf of FIXI, I welcome you all to this training session on basic catering and COVID precautions for the food industry. This course is of 4 hours. So 3 hours are dedicated to basic catering section and 1 hour for COVID-19 guidelines. There will be, I am not sure about two tea breaks or not because we have started the session a bit late. So there will be a tea break and a lunch that would be, which would be separate. So before I start, I would like to give you a brief about FIXI. So Food Industry Capacity and Skill Initiative. FIXI, widely known as a Food Processing Sector Skill Council, which is supported by FICCI and NSDC. So our main aim is to create the occupation standards and qualification packs. We also develop competency frameworks, conduct the train the trainer programs, conduct skill gap studies, and assess and certify trainers on the curriculum assigned to aligned to national occupation standards that are developed by us. So we are basically into the food processing skilling sector. And this course of basic catering and COVID-19 is based on more giving more insight on precautions that has to be taken by the food industry in day-to-day working and as well as in the current scenario. So we all by now we all have many questions with regard to the pandemic as well. Many questions might have been solved, but still there are few questions that are unsolved. So would request everyone to kindly just indulge in this training and let's have a two-way interaction rather than having a one-way interaction and solve all your doubts, queries that you have during the session. So now let me introduce you to our trainer, Mr. PC Sharma sir, having an experience of more than 25 years in the industry. Again, I would request all the participants to turn off their mics, use a chat box for any doubts in between the session. Also, there would be a question answer round. Sir would be conducting question answer round in between. So, in case you have questions during that time or any doubts, you can unmute yourself or use chat box as you're convenient, as sir is convenient, and let's hope to have a insightful session on the same. So again, I would welcome everyone on behalf of FIXI, and now over to you, Mr. Sharma. Okay, thank you, Ritika. I am audible now. Is everything Yes, okay? sir. Yes, sir. Okay, let me share my. Stop. So now everyone can switch off their videos because it consumes a lot of data in between. So we'll have another photograph at the end of the session. So at that time, I will ask everyone to switch on the videos. So now you can switch off your videos and your mics as well. Thank you. Are you getting a feed from my laptop, Ritika? Is it okay now? So it's taking some time, I guess. It's not visible now. The screen is not visible now. I think it's taking some time. Yes, yes. Yeah. Uh, I can sense there is some problem today. I think now you are able to watch my screen now. Yes, it's better, sir. Fine, fine. So can you just do this the presentation full screen? Yes, yes, yes. Yeah. Obviously. Is it okay now? Everything okay? Yes, sir. Now it's better. Okay. Let me start. Yes. So how many participants are there? 12 or 13? So there are currently 12 participants. 12. One or two participant is yet to join.
Okay, I fine. think they have joined and left in between due to some network issues, so they will join back. Okay, fine. So we can start the session, sir. Yeah, fine. So, welcome everyone. Just as Ritika introduced me to you people, my name is Prem Chandra Sharma. Basically, I'm a food technologist, and for the last 3 years, I am with Fostech as their trainer. So today we are going to have this Fostech training session based on module prepared for catering sector. And in catering, we will study basic requirement of food safety, basic requirement, basic guidelines, and all requirements mentioned in the Standard Act, our Food Safety and Standard Act. And also, we will discuss various means and measures to ensure food safety in our establishment, in our catering establishment. So let us begin without any delay, because already we are late by 1 hour. So you all know, in 2006 we had this new Food Safety and Standard Act passed by the Parliament. पार्लियामेंट में इस एक्ट को आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी वाज क्रिएटेड इन 2008, and this authority was created to ensure compliance and administer food business across the country, across yes sir. Excuse me sir, please continue in Hindi. हिंदी में बोलेंगे तो सही रहेगा, प्लीज। अरे बहुत बहुत सही सर, बहुत ठीक, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको मतलब हिंदी समझ में नहीं आती है, ऐसा तो कोई नहीं है ना? जी सर, हिंदी में ही बताइए। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, नया हमारा जो कानून पास हुआ था 2006 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। इस कानून बनने के बाद एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो इस कानून के अंदर जो भी प्रावधान हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनको पूरे देश में इंप्लीमेंट करा सके। तो इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया 2008 में। इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है पूरे देश में इस कानून के जो प्रावधान हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड किए गए हैं, उनका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में इंश्योर कराया जाए। तो सारे जो रूल्स हैं, कानून हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब 2011 में दोबारा रिलीज किए गए हमारे पब्लिक डोमेन में। सारे फूड इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या स्टैंडर्ड होना है, फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें करनी है, जो नए प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, उनका क्या मेथड होगा उनको अप्रूवल का। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे 2011 में आए। अभी भी कुछ नए रेगुलेशन अभी भी आए हैं, पिछले साल भी आए हैं। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में सारी रिक्वायरमेंट शामिल है, पुरानी भी और नई भी। एक बहुत इसमें नए कानून के बाद एक नई रिक्वायरमेंट जो आई थी, वो ये है कि हर फूड बिजनेस में एक कम से कम एक ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना मैंडेटरी है हर 25 फूड हैंडलर्स के बीच में। तो अगर आपके कैंटीन में 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कम से कम 4 ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स चाहिए। इसीलिए पूरे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लाखों इंडस्ट्रीज हैं फूड की, अलग अलग फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको सफिशिएंट मात्रा में ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स मिले, इसलिए इस फॉस्टैग को बनाया। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, फॉस्टैग का काम है कि जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हर इंडस्ट्री को ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स चाहिए। तो फॉस्टैग का काम है वो ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स को तैयार करना। अलग अलग फूड इंडस्ट्री के लिए कोर्स उन्होंने बनाए हैं। जैसे आप इस अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे कोर्स हैं। फूड इंडस्ट्री कई तरह की होती है। हमारी डेयरी इंडस्ट्री हो सकती है, मीट इंडस्ट्री होती है, फिश एंड सी फूड है, पैकेज्ड वाटर है, ऑयल है, बेकरी है।
या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो हर इंडस्ट्री को सूट करते हुए कोर्स डेवलप किए हैं। और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी की इंडस्ट्री है तो वहां पे जो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखे जाएंगे उनको स्पेशल कोर्स में ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो ये सारे कोर्स हैं हमारे अलग अलग फूड इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स को तैयार करते हैं। तो बेसिकली फूड सेफ्टी फॉस्टेक जिसको हम बोलते हैं, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये एक लार्ज स्केल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम है हमारे देश में पूरे फूड बिजनेस के लिए। पूरे देश में अलग अलग टाइप की फूड इंडस्ट्री के लिए फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स रखने की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करता है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हमने अभी बात की थी, सबसे नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, हर 25 फूड हैंडलर पे कम से कम एक ट्रेंड और सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर जरूर होना चाहिए। तो बहुत सारी नई रिक्वायरमेंट हैं इस कानून के आने के बाद। जो एक रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन में रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन बोलते हैं उसको हम। इस रेगुलेशन में एक जो बहुत नई रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ये कहती है कि कोई भी फूड बिजनेस पूरे देश में कहीं भी होगा, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो किसको रजिस्ट्रेशन चाहिए, किसको लाइसेंस चाहिए, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ उनके जो सालाना कारोबार है, एनुअल टर्नओवर, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके हिसाब से जो छोटे व्यापारी हैं, फूड बिजनेस हैं, जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है सालाना, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ए है, उसको भर के, बहुत नॉमिनल फी है 100 रुपए की, 100 रुपए की फी भर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं जो इस रेगुलेशन में मेंशन की गई हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर लाइसेंस दो तरीके के हैं, एक स्टेट लाइसेंस है, एक सेंट्रल लाइसेंस है। स्टेट लाइसेंस का टर्नओवर जो है बिजनेस का, वो 12 लाख रुपए से 20 करोड़ के बीच में होना चाहिए। फॉर्म बी है, ये भी ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, फॉर्म बी भरिए, और इसकी जो एप्लीकेबल फी है उसके साथ आप इसको स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल लाइसेंस की टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए भी सेम फॉर्म बी है। इसमें कुछ और कैटेगरी भी आती हैं सेंट्रल लाइसेंस में। एक्सक्यूज मी। सारे एक्सपोर्टर्स हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स के, सारे इंपोर्टर्स हैं जो बाहर से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, उन सबको सेंट्रल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, रेलवे है, एयरलाइन है और डिफेंस है, इन सबको भी सेंट्रल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सारे बिजनेस, बड़े बिजनेस जो एक स्टेट से ज्यादा, एक राज्य से ज्यादा राज्यों में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी सेंट्रल लाइसेंस की कंडीशन है, उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना है। फी स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 100 रुपए की फीस है, बाकी लाइसेंस के लिए अलग अलग आपके बिजनेस की कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से फीस डिसाइड की गई है। अगर आपका कोई दूध का व्यवसाय है, डेयरी इंडस्ट्री है, तो आप एक दिन में कितना लीटर दूध प्रोसेस करने की आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपका जो फी है वो वेरी करता है। तो आप फी जमा करके, अपने कैपेसिटी के हिसाब से फीस जमा करके आप ऑनलाइन अप्लाई करके लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस लेने के लिए भी वही कंडीशन है कि आपके प्रेमाइसिस में, आपके बिजनेस में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो सुरक्षित फूड के प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। स्वच्छता, साफ सफाई, फूड सेफ्टी के लिए जो भी चीजें चाहिए, हमारे फूड को कंटेमिनेट ना हो सके, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, वो सब आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट आपको इस रेगुलेशन में मिल जाएगी। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस रेगुलेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर एक शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 4 में 5 पार्ट्स हैं।
पहला पार्ट जो है वो इसी स्मॉल जो जिनको रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो स्मॉल स्केल के फूड बिजनेसेस हैं उनके लिए है। और लास्ट में जो पार्ट 5 है वो स्पेशली कैटरिंग बिजनेस में जो लोग एंगेज हैं, जिनका कैटरिंग का काम है, उनके लिए उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं। तो आप सारी डिटेल्स वहां से ले सकते हैं, अपने प्रेमाइसिस में सारा इंतजाम कर सकते हैं कि आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो साफ बने, सुरक्षित बने, आपकी कर्मचारियों की पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी हो, साफ सफाई रहे। सकता है आपके प्रेमाइसिस का एक इंस्पेक्शन हो सकता है। इंस्पेक्शन होने के बाद आपको, अगर वो सेटिस्फाइड हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर सेटिस्फाइड है, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। ये एक सैंपल सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपको कब आपको सर्टिफिकेट इश्यू हुआ वो डेट होगी, कितने टाइम के लिए वो वैलिड है, ये 1 साल की वैलिडिटी का सर्टिफिकेट है, वो आपको मेंशन होगा इसमें। आपने कितनी फीस जमा करी है वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा, और आपका सारा बिजनेस का एड्रेस, जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं वो सब आपको मिलेंगी। 1 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना होता है। आप चाहें तो इसको 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 200 रुपए की फीस जमा करके। 5 साल मैक्सिमम वैलिडिटी है जो आप ले सकते हो। 500 रुपए की फीस देके आप 5 साल की वैलिडिटी वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होगा। तो ये कैटरिंग के लिए ये जो रेगुलेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस स्टैंडर्ड में, उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको अपने प्रेमाइसिस में इस तरीके का, लेफ्ट में जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। जो कैटरिंग के लिए पर्पल कलर का फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड जो बनाया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ये फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड आपको डिस्प्ले करना है अपने प्रेमाइसिस में। इसमें सारी हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसमें आपके सब बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको इंश्योर करनी है आपके प्रेमाइसिस के अंदर मौजूद हों, और आप उनका अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। तो ये फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड आपको डिस्प्ले करना है अपने प्रेमाइसिस में। ये पर्पल कलर का करना है अगर आप कैटरिंग सेक्टर में हैं। ऊपर आप देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है रेस्टोरेंट। तो चूंकि रेस्टोरेंट भी कैटरिंग रूल से गवर्न होता है, तो ये रेस्टोरेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, होटल के लिए भी एप्लीकेबल है, कैंटीन के लिए भी एप्लीकेबल है। आप इसको जरूर डिस्प्ले करें। ये हमारा जो फॉस्टेक का जो पूरा इकोसिस्टम है ट्रेनिंग का, उसमें ट्रेनिंग पार्टनर्स भी एम्पैनल किए जाते हैं जो पूरे देश में अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे आज की ट्रेनिंग फिक्सी एक एम्पैनल ट्रेनिंग पार्टनर है FSSAI का। फिक्सी के सुपरविजन में, फिक्सी के बैनर के अंडर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होल्ड किया जा रहा है आज, बेसिक लेवल ट्रेनिंग का, बेसिक कैटरिंग का। तो फिक्सी एक एम्पैनल ट्रेनिंग पार्टनर है, मैं उनका ट्रेनर हूं, आप लोग ट्रेनीज हैं। और चौथा जो स्टेक होल्डर है वो हमारा फॉस्टेक है, जो सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार करता है अलग अलग फूड इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग सेक्शन के लिए। तो बेसिक कैटरिंग में कैटरिंग की परिभाषा क्या है, कैटरिंग हम किनको बोलते हैं? कैटरिंग वो सारी एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटीज हैं जहां पे हम फूड का प्रोडक्शन करते हैं, फूड को हम हैंडल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पकाते हैं, लोगों को खाने को देते हैं, उनको सर्व करते हैं लोगों को। जैसे शादियों में आप देखते हो खाने को सर्व किया जाता है, पार्टियां होती हैं वहां पे खाने को सर्व किया जाता है। होटल में जाते हो आप खाना खाने, वहां भी आपको खाना सर्व किया जाता है। या आप बाहर से खाना पैक करा के ले आते हो खाने के लिए, या आप अपने ऑफिस की कैंटीन में खाते हैं, स्कूल की कैंटीन में खाते हैं, या हॉस्पिटल में भी अगर आपका कोई आपकी कोई फैमिली मेंबर एडमिट है तो वहां पे भी कैंटीन होती है जहां से आपको खाना मिलता है अपने रिलेटिव के लिए, और उनके अपने स्टाफ के लिए भी वहां पे खाना बनाया जाता है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, ये रेलवे की जो कैटरिंग सर्विस है उसका एक इमेज है। एक नई ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस में बहुत
इम्प्रूव्ड तरीके से कैटरिंग फैसिलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बड़ा साफ सुथरा हाइजीनिक तरीके से खाना उनको जो ट्रैवलर्स हैं उनको सर्व किया जाता है। तो जरूर सफर करिए गतिमान एक्सप्रेस में, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे कैटरिंग सेक्शन में आते हैं। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सारी कैंटीन्स, इसमें हमारे टिफिन सर्विस भी आते हैं, डिब्बे वाले भी आते हैं। मुंबई के जो डिब्बे वाले हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं वो लोग, अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन के लिए। हॉस्पिटल कैटरिंग है, टिफिन सर्विस है, डिब्बा वाला है। मंदिर और मस्जिद में भी जहाँ पे प्रसाद बनता है वो सब भी इसी में आते हैं। स्कूल, ऑफिस, कैंटीन, सारी कैंटीन इसमें आती हैं। स्नैक बार्स होते हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स हैं और दूसरे ईटिंग हाउसेस हैं, ये सब कैटरिंग के अंडर में आते हैं। यहाँ पे जो भी फूड प्रोडक्शन होता है उसमें ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैटरिंग सेक्शन के लिए हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो बेसिकली यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इसमें 10 सेक्शन है, 8 सेक्शन टेक्निकल हैं, एक के बाद हम इनको हम कवर करेंगे। इसके बाद लास्ट के 2 सेक्शन हैं वो आप लोगों के लिए हैं। एक में आपको फीडबैक सबमिट करना है ट्रेनिंग के अगेंस्ट, आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, आपने जो भी फैसिलिटी है ट्रेनिंग की वो कितनी कन्वीनियंट थी, कितनी फ्रेंडली थी। इसके बाद आपको एक एग्जामिनेशन में भी बैठना है, असेसमेंट होगा आपका, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग पार्टनर बताएंगे डिटेल में। तो जो ऊपर के 8 टेक्निकल सेक्शन है वो हम एक के बाद एक करके कवर करते हैं। पहला हमारा सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी का मतलब है हम फूड सेफ्टी के बारे में समझें। फूड सेफ्टी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फूड सेफ्टी को स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है, और हमारी गवर्नमेंट जो है, हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो सब फूड सेफ्टी के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत पैसा खर्च होता है फूड को सुरक्षित तरीके से बनाने के लिए। तो फूड सेफ्टी की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये कहती है कि हमारा जो भी कोई भी चीज खाने वाली चीज है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको खाने के बाद किसी भी कस्टमर को, किसी भी कंज्यूमर को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, शारीरिक नुकसान ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई बीमारी ना हो, और खासकर जो दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियां होती हैं जिनको हम खाद्य जनित रोग बोलते हैं, वो उस टाइप की कोई बीमारी ना हो। तो ये इसकी परिभाषा है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको सब जगह यही डेफिनेशन मिलेगी। फूड सेफ्टी इज एन एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज। इसके लिए फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम एक ज्यादातर हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, फूड प्रोसेसिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में हम लोग फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक प्रोग्राम चलाते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम उन सभी चीजों का पालन करते हैं जिससे प्लांट के अंदर साफ सफाई रहे, कोई गंदगी ना रहे, कोई कीड़े मकोड़े हमारे अंदर भोजन को कंटेमिनेट ना कर सके, हमारे जो भी कर्मचारी हैं उनकी अपनी जो स्वच्छता है उसको हम लोग मेंटेन कर सकें, और ऐसी कोई गंदगी या जिसको हम बोलते हैं हैजर्ड बोलते हैं या कंटेमिनेंट्स बोलते हैं या पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, जो भोजन में नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई चीज हमारे भोजन में कहीं से भी इंट्रोड्यूस ना हो पाए, तभी हमारा फूड ऐसा बनेगा जो खाने के बाद किसी को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक तरफ हमारा सेफ फूड है जिसको खाने से हमें कुछ नहीं होता है, एक तरफ हमारा अनसेफ फूड है जिसको खाने के बाद हमें अक्सर कोई ना कोई बीमारी हमको महसूस होती है। खासकर हम लोग जानते हैं अगर हम गर्मी के मौसम में बाहर खाते हैं खाना, कोई शादी है, पार्टी है, जहाँ पे अक्सर खाना बहुत लेट हो जाता है,
तो बहुत देर के बाद जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर हमको हमारे पेट में दर्द होता है, दर्द महसूस होता है, उल्टी आती है, कभी कभी पेट में दर्द होता है, उल्टी आती है, पेचिश होती है, दस्त होती है, सर में दर्द रहता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं खाद्य जनित रोग के। दूषित भोजन और दूषित पानी से जो बीमारियां होती हैं उनके ये लक्षण होते हैं। तो अगर आपको खाना खाने के बाद इनमें से कोई भी लक्षण आपको महसूस होता है तो आपको यकीन हो जाता है कि हमने या तो कोई खराब पानी पिया है, गंदा पानी पिया है, या हमने ऐसी कोई चीज खाई है जो मिलावटी थी, जिसमें गंदगी थी, दूषित दूषित थी या संक्रमित थी। तो ये हमारी परिभाषा है, ये हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। और जो चीजें हमारे भोजन को दूषित करती हैं, जिनके होने से हमारा फूड कंटेमिनेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं हैजर्ड्स या कंटेमिनेंट्स। जो हैजर्ड्स हैं, एक्चुअली जो हैजर्ड शब्द है उसका मतलब है वो सारी चीजें जिनके होने से हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो हार्मफुल हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि जिसको खाने के बाद हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान जरूर होगा। तो इन जो हैजर्ड्स हैं इनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हैजर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और इनके होने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हैजर्ड जो हैं कहाँ कहाँ से हमारे फूड सिस्टम में आते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके के हैजर्ड हैं जो हम इस बेसिक लेवल में पढ़ते हैं। एक होते हैं हमारे फिजिकल भौतिक खतरे, केमिकल रासायनिक खतरे, और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक खतरे। हैजर्ड को हम हिंदी में खतरे बोल सकते हैं, ऐसी खतरनाक चीज जिसको खाने के बाद हमें नुकसान जरूर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल हैजर्ड्स की। भौतिक हैजर्ड, फिजिकल या भौतिक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो हमको दिख जाती है। तो अगर हमारे भोजन में कोई पेपर है, प्लास्टिक है, कोई छोटा सा कोई मक्खी है मरी हुई, कोई कॉकरोच है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई पत्थर है, तो ये सारी चीजें हमको दिख जाती हैं आंखों से, ये सारी फिजिकल हैजर्ड्स हैं। तो ये चीजें हमारे भोजन को कई बार होता है कि हम जो चीजें बहुत नुकसान करने वाली नहीं होती हैं उनको हम निकाल देते हैं और भोजन को हम खा लेते हैं। जैसे कोई पेपर है, प्लास्टिक है, तो उसको हम निकाल के खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे कोई मरा हुआ कोई कॉकरोच है, मक्खी है, कोई और कीड़ा है, तो उस केस में हम भोजन को नहीं खाते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। तो भोजन को फेंकना एक अलग समस्या है, फूड स्पॉइलेज की, फूड वेस्टेज की, वो भी एक बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश में। तो जब हम इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं फूड सेफ्टी की, तो हमारा मकसद होता है कि हम दोनों भोजन से होने वाली बीमारियों को भी रोक पाएं और भोजन की बर्बादी को भी हम कम कर पाएं। तो फिजिकल हैजर्ड्स जो हैं वो भोजन की बर्बादी के लिए भी जिम्मेदार हैं, और कभी-कभी हमारे शरीर में बहुत गंभीर किस्म के नुकसान भी हो सकते हैं इन फिजिकल या भौतिक हैजर्ड से, खतरों से। जैसे अगर आपके भोजन में कोई छोटा सा कांच का टुकड़ा है, कोई छोटा सा ब्लेड का पीस है, बहुत ब्लेड तो बहुत शार्प होता है जिससे हम शेविंग करते हैं, तो अगर ऐसा कोई ब्लेड का टुकड़ा है छोटा सा, या कांच का टुकड़ा है बहुत तेज, या कोई लोहे की कील है, तो अगर ऐसी चीज हमको दिखाई ना दे और हम भोजन के साथ उसको खा लें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कितना गंभीर नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से फिजिकल हैजर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनको भी बहुत गंभीरता से इनको भोजन में जाने से रोकना चाहिए। तो जो भी हमारा प्रोग्राम होते हैं, इस ट्रेनिंग में जो भी चीजें हम सीखेंगे, आगे बात करेंगे, उन सबका मकसद है फिजिकल हैजर्ड्स को भी हमारे फूड में जाने से रोकना। दूसरे खतरे हैं रासायनिक खतरे, केमिकल्स। बहुत सारी केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फूड प्रोडक्शन में। हमारी खेती से ही ये शुरू हो जाते हैं। हम लोग बहुत तरीके के कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग खरपतवार बोलते हैं। और इसके अलावा हम कभी-कभी जानवरों को हम दवाइयां भी देते हैं,
दूध बढ़ाने के लिए या मीट का प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए, मीट की क्वालिटी अच्छी करने के लिए हम लोग कभी कभी ग्रोथ हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स देते हैं जानवरों को। तो ये केमिकल्स, ज्यादातर केमिकल्स हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो अगर ये केमिकल जो मात्रा आपको इस स्टैंडर्ड में मिलेगी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने जो लिमिट्स प्रेस्क्राइब की हैं, अगर उस लिमिट से ज्यादा आपको ये केमिकल फूड प्रोडक्ट में हैं तो आपके शरीर को जरूर नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें बहुत सारे खतरनाक केमिकल भी हो सकते हैं। ज्यादातर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, उससे किसी की जान भी जा सकती है। तो बेसिकली हम इसके बारे में बात कर रहे थे, केमिकल कंटेमिनेशन के। हमारे सोसाइटी में पिछले 10-12 सालों में बहुत केस ऐसे आए हैं केमिकल कंटेमिनेशन के, जो बहुत टीवी पे हमने देखने को मिले थे, बहुत उनको हाईलाइट हुए थे। किसी को किसी भी एग्जाम्पल का आइडिया है? कोई एग्जाम्पल दे सकता है? कौन सा एग्जाम्पल में याद है केमिकल कंटेमिनेशन का? कोई भी पार्टिसिपेंट इसका आंसर दे सकते हैं? ये मैगी का MSG जो केस आया था इसमें। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी करेक्ट। एक मैगी का केस आया था, उसके अलावा मैगी में क्या था, कुछ याद है आपको? लेड था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट था। नहीं, वो दूसरे जो सज्जन बोल रहे थे, लेड की प्रॉब्लम थी मैगी में। मैगी की जो साथ में मसाला आता है ना, पैकेट आता है एक सीजनिंग का, उसके अंदर जो लेड था, उसकी मात्रा जो थी वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा थी। इससे पहले हमारे जी क्या चीज, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है सर। एक ब्रेड में आई थी पोटेशियम ब्रोमेट की। हाँ, ब्रेड में भी पोटेशियम ब्रोमेट की थी। ब्रोमेट तो बैन हो गया है, ब्रोमेट अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ब्रोमेट भी एक प्रिजर्वेटिव है, केमिकल है, और वो शायद बैन हो गया है। तो इसके अलावा जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक्स में भी पेस्टिसाइड्स की प्रेजेंस थी। उसका भी एक मुद्दा उठा था, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड उसमें बहुत ज्यादा थे। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा हैजर्ड होते हैं वो है बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल मतलब जैविक का मतलब प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा पीछे से साउंड आ रहा है। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड का मतलब होता है जैविक खतरे, मतलब जिनमें जान होती है, जो जीवित होते हैं। इसमें मुख्यतः हमारे बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं और वायरस आते हैं। बैक्टीरिया आप सब जानते हैं क्या होते हैं, वायरस आप सब जानते हैं। वायरस के बारे में तो हम लोग इतना ज्यादा जान चुके हैं पिछले 8 महीने में, शायद हमने कभी इतनी नॉलेज हमको कभी नहीं थी वायरस के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। तो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है जिसको हम फफूंदी बोलते हैं हिंदी में। ये 3 तरीके के जो बैक्टीरियल हैजर्ड हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड हैं, ये हमारे फूड को दूषित करते हैं। और ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया से ही होती हैं। तो हमारा जो फूड सेफ्टी का जो प्रोग्राम है, वो उसका जो फोकस है, वो सिर्फ ज्यादातर उसका जो फोकस होता है वो मुख्यतः बैक्टीरिया और वायरस को भोजन में जाने से रोकना होता है। क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां हैं, खाद्य जनित रोग, वो बैक्टीरिया से होते हैं और वायरस से होते हैं। जो फंजाई है, मोल्ड है, जिसको हम फफूंदी बोलते हैं, वो मुख्यतः हमारे फूड के स्पॉइलेज के लिए जिम्मेदार होते हैं, भोजन की बर्बादी के लिए। तो इसलिए फंजाई और मोल्ड का भी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भोजन की बर्बादी को भी रोकना हमारा एक मकसद है इस ट्रेनिंग को लेने का। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड मतलब बैक्टीरिया और वायरस और मोल्ड्स या फंजाई। कैटरिंग सेक्शन की बात हम करें तो कैटरिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है वो बायोलॉजिकल हैजर्ड मतलब बैक्टीरिया की है। क्योंकि कैटरिंग सेक्शन में और खासकर हमारे देश में जो
स्मॉल स्केल का जो बिजनेस होता है फूड का, छोटे रेस्टोरेंट हैं या कैंटीन ढाबे हैं, सड़क किनारे ढाबे होते हैं, वहां पे जो खाना बनता है, जो खाना बना के लोगों को परोसा जाता है, सर्व किया जाता है, वहां पे इस जो साफ सफाई होती है, जो हाइजीन होनी चाहिए, जो पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, या जो आसपास का जो वातावरण होता है वो बहुत खराब होता है, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट या सुधार की जरूरत है। तो बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि जो बहुत छोटे तौर पे कैटरिंग का काम करते हैं, वहां पे इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, उन पे वहां के जो कर्मचारी हैं उनका जो स्किल लेवल है वो बढ़ाया जाए, ताकि वो फूड सेफ्टी के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उनको उठा सकते हैं। तो कैटरिंग में बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल है फूड को कंटेमिनेट करने का, और बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं दूषित भोजन की वजह से बीमारियां पैदा करने के लिए। तो हम बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि बैक्टीरिया को क्या क्या चीज चाहिए जीवित रहने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसके जो एक बैक्टीरिया है उससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से, वो कब होगा, उसके लिए उनको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। जब तक हमको इन चीजों के बारे में नहीं मालूम चलेगा, हम